It is to be a great pleasure and pride for me that first time I am here. It is very beautiful land. Anywhere if we need development, we need to develop infrastructure. The most important project is, which is the lifeline of Mizoram, that is Silchar to Verigate. Verigate, जो आखिर it will go to Sairang. We are making 4-lane road that is of 98 km total length. Cost is 3,500 crore. Presently, because of the government, still the project is delayed, and I am confident that with your support, there will be government which is supported to BJP 100%. We will complete this road. That is to be guaranteed. I want to give you. Our government under the leadership of Modi ji has taken a lot of revolutionary decision to change the socio-economic transformation of Northeast. I am one of the person who is responsible for the infrastructure. I am very much serious. I will promise you that we will change the infrastructure of Mizoram with international standard. But for that reason, you need to have a government which will be helpful for the center. You can make double engine sarkar, and that is to be important. And here our president, who is a candidate from this constituency, who is constantly trying for development of Mizoram, and our candidates are also here. They are also committed for the development, and they want to change the socio-economic scenario of the Mizoram, who do only one thing: to support BJP, support NDA, and then see the result. It will be my responsibility. This will be my commitment that Mizoram will be changed. It is really a great pleasure for me to receive Dilip. Giving my special thanks to University and University Management, Chancellor and Vice Chancellor for giving me this Dilip. It is a pride and pleasure for me. Anything when the people recognize you, that is going to be give you a motivation. I am happy that you are getting good education. I pray to God for your good future. I am giving all best wishes to all of you for your bright future. I am giving my special thanks to all of you for giving me this respect and reward. आसाम का अगर चित्र देखा जाएगा तो 248 प्रोजेक्ट, 4091 किलोमीटर और कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक जाएगी, क्योंकि इसमें भी रोपवे और जोगी जोपा का जो मल्टी मॉडल हब है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो आसाम में हम लोग इस 10 साल में 1 लाख करोड़ के काम हम लोग अभी कुछ कर चुके हैं, कुछ शुरू है और कुछ पूरे करेंगे। आसाम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोपवे बन रहा है। एक सीआरएफ में आसाम में अभी तक 2104 करोड़ की लागत से 1668 किलोमीटर की 174 परियोजनाएं हमने स्वीकृत की थी जो राज्य मार्ग पर है।
वार्षिक एक्रूअल 164 करोड़ का है और हम सीआरएफ में मैं आज और 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि जो पेंडिंग इशू थे वो बहुत से इशू रिजॉल्व किए गए और मैं विशेष रूप से आसाम के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मीटिंग के पूर्व 4 से 5 मीटिंगें अपनी खुद ली और आसाम में जितनी अड़चनें थी, जितनी समस्याएं थी, प्रॉब्लम थे, लगभग 100% प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व करके दिए। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले नॉर्थ ईस्ट को अमेरिका के स्टैंडर्ड के अच्छे रोड मिलेंगे। तो मुझे विश्वास है काफ़ी प्रमाण में हम ये सपना पूरा कर सकेंगे। बहुत दिनों के बाद मुझे गुवाहाटी में आने का अवसर मिला। विशेष रूप से मुझे खुशी हुई कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ बातें कही है, जिसके बारे में निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। रेलवे स्टेशन से लेकर कामाख्या मंदिर तक रोपवे निर्माण करने के कार्य को मैं मंजूरी दे रहा हूं और जनवरी के पहले सप्ताह में आऊँगा। तो आज तो 20,000 करोड़ के भूमि पूजन हुए, तब 25,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन करके जाऊंगा। जो ग्रीन रोड के बारे में आपने कहा है, गुवाहाटी ग्रीन रोड, ग्रीनफील्ड रिंग रोड, इसके बारे में भी मैं घोषणा करता हूं और जनवरी में जब आऊंगा तो इस रिंग रोड का भूमि पूजन करूंगा, ये भी वचन देता हूं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए कालियाबोर से नुमालीगढ़ यहाँ तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से ये एलिवेटेड रोड बनेगा, इसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है, इस देश को प्रगति और विकास को ले जाने वाले लोगों की कमी है। और इसीलिए पिछले 75 साल के इतिहास में जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में हमने करके दिखाया।